Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the next topic, that is the nucleophilic substitution reaction, well known as SN reaction. So we are going to discuss about the mechanism for SN1 and SN2 reaction. Then first of all, we are starting with the chemical reaction. So when a haloalkane, I have taken CH3Cl, is treated with potassium hydroxide KOH, especially aqueous KOH, it gives CH3OH plus KCl, methanol and potassium chloride. Simple reaction. You can see the chlorine is displaced by the hydroxyl and hydroxyl is displaced by the chlorine. A substitution reaction. Why nucleophilic? Nucleophile आप लोग जानते हैं. Nucleophile means those of the species having negative charge are called the nucleophile. Or by the word meaning, if you want to know, nucleo means nucleus, phile means lover. Then nucleus lover is called the nucleophile. And what is the nature of the nucleus? जब आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. And when you will talk about the nature of proton and neutron is neutral. Proton positive by the nature. So the overall nucleus is positively charged. So all those of the species which are negatively charged or which are the electron rich species, they are considered as a nucleophile. So the nucleophiles are those of the species which have the negative charge or which are the electron rich species. Here when the KOH will break, it will form K plus and OH minus. So OH minus, which is a negatively charged species, or you can say a electron rich species, that will be called nucleophile. Again मैंने कहा कि वो सारी स्पीसीज जिनके पास निगेटिव चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं. यहाँ पे जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक करता है तो ये बनाता है पोटेशियम आयन, दैट इज द K प्लस, एंड हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज OH माइनस. And here OH minus is a nucleophile, and here the displacement, here the substitution of nucleophile Cl is taking place with the hydroxyl. So this is the nucleophilic substitution reaction. Now when you will talk about the mechanism, there are two different type of the mechanism, and the first mechanism is called SN1 mechanism. SN1 mechanism. The SN1 mechanism, the full form of the SN1 is the substitution nucleophilic monomolecular. यानी molecularity of the reaction especially for the rate determining step will be 1. इस रिएक्शन की molecularity 1 है, इसलिए यह है SN1 रिएक्शन. अब अगर हम देखें कि हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, रिएक्शन ये कैसे चल रहा है, तो इसके लिए आप देखिए, दिस इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हम यहाँ पे किसी नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में नहीं चल रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में चल रहे हैं, एक प्रॉपर पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में चल रहे हैं. और पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KOH को ब्रेक करेगा और बनाएगा K प्लस और OH माइनस. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेगा पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में. अब देखिए, अब इस प्रोटिक या फिर पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब हम क्लोरोमेथेन को ट्रीट करेंगे, दिस इज द क्लोरोमेथेन CH3Cl, जब इसे ट्रीट करेंगे तो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट की वजह से ये टूटेगा और बनाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव. ये एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हमेशा एक स्लो स्टेप होता है. सो दिस इज अ स्लो स्टेप, देन दिस वन इज अ स्लो स्टेप. पहले रिएक्शन को हम नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं करते हैं. रीजन आप सबको क्लास 11 में बताया गया था. ये आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड को एक प्रॉपर केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में रखते ही नहीं है. रीजन आप लोगों को लास्ट ईयर बताया था, द पोलर बॉन्ड, द आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट एक्चुअली द डायरेक्टिव बॉन्ड, दे डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन. वो एक्चुअली सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के फॉर्म में जाने जाते हैं. सो वी डज नॉट कंसिडर देम एज अ chemical bond. So this step is not a proper step for determination of the rate. अब ये है आपका slow step. What will be the next step? This is the CH3 positive. When it approaches with the hydroxyl ion OH minus, it will form CH3 and OH. CH3OH. और बचा क्या, यहाँ पे बच गया K प्लस, यहाँ पे बच गया Cl माइनस.
ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ऊपर हम लिख देते हैं, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके क्या बना लेंगे, कंबाइन करके बनाएंगे KCl। दिस इज द K प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स KCl। फिर से ये रेट डिटरमाइन नहीं कर रहा, ये आपका हो गया फास्ट स्टेप और प्रीवियस वन वाज द स्लो स्टेप। तो यहाँ पे ये दो स्टेप हो गए, द फास्ट वन द स्लो वन, दो स्टेप्स। अब अगर आप बात करें कि विच ऑफ द स्टेप विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, श्योरली इट इज द स्लो स्टेप विच विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बार हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज द स्टेप विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, and the first step, this step is a slow step, and that is the region that will determine the rate of reaction. And how many molecules are there in this reaction? When you will see this step, only one molecule is there, and having only one molecule, the reaction is called unimolecular reaction. So it is a unimolecular reaction. Clear? So this reaction is a unimolecular reaction because one molecule is there in the rate determining step. When you will see the next step, this is the next step. How many steps are involved? The first step and the second step. There are two steps are involved in this reaction. So it is a double step process. And last one, what type of product is there? Whether the product is inversion or retention. So when you will see the position of chlorine here, it is on my right hand side, and when you will see the position of the hydroxyl group here, it is again on the right hand side. So both reactant and product have heteroatoms on the right hand side, और अगर right hand side में है इसका मतलब the configuration is retained by the system, जो configuration है वही configuration यहाँ पे बना रहना है, the retention in configuration is taking place। अगर यहाँ पे retention in configuration हो रहा है तो क्या रियल में हो ही रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा ही हो रहा है या कुछ गड़बड़ भी है? अगर यहाँ पे देखें तो ये है एक कैटायन, और इस कंडीशन में अगर हम कार्बन को देखें इट इज sp2 हाइब्रिड। मैं थोड़ा सा ऊपर से हटा दे रहा हूं, आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम इसे देखें तो ये कार्बोकैटायन, ये है आपका कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन्स हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के टर्म में देखें तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसने लूज कर दिया है। सो द सिस्टम इज sp2 हाइब्रिड। sp2 से क्या फर्क पड़ा? शेप, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, एंड वेयर इज द चार्ज? चार्ज इज ऑन द कार्बन। अब कार्बन पे चार्ज होने से फर्क क्या पड़ेगा? जब आपने फिजिक्स में पढ़ा था द चार्ज ऑन अ हॉलो स्फीयर, किसी हॉलो स्फीयर पे चार्ज कहां पे सर्वाइव करता है, देन वी से for any of the hollow sphere, if you are providing the charge on any of the hollow sphere, the charge disperse identically on the surface of the system. अब यहाँ पे देखें एटम, एटम क्या है? There is a nucleus in the center and electrons revolve around it. This is a hollow sphere, एक खोखला गोला जिसपे जब चार्ज दिया जाता है तो उसके सरफेस पर आइडेंटिकली डिस्पर्स कर जाता है। तो अगर हम इस गोले को यूं दिखाएं तो इस पे चार्ज कहाँ है? किसी एक पोजीशन पे नहीं है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। और कैसा? आइडेंटिकली, हर तरफ एक जैसा चार्ज है। और अगर हर जगह एक जैसा चार्ज है यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है Nu निगेटिव से मैंने शो किया, वो इधर से भी अप्रोच कर सकता है, इधर से भी अप्रोच कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, यानी चार्ज हर तरफ से आइडेंटिकली अवेलेबल है। यानी कि जितना चांसेज ऑफ रिटेंशन है टू रिटेन द कॉन्फ़िगरेशन, उतना ही चार्ज क्या है? चांस क्या है? इन्वर्जन का। जितना चांस है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वही बना रहेगा, उतना ही चांस है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा और स्पीशीज अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। एंड दिस इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द रिटेंशन एंड इन्वर्जन इज कॉल्ड रेसमिक mixture. Then SN1 reaction gives the racemic mixture. तो तीन चीजें मैंने बताई,
एक ये रेसमिक मिक्सचर देता है, दूसरा यूनिमॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलरिटी इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में 1 है, और एक डबल स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप में रिएक्शन चलता है। देन दिस इज द यूनिकनेस फॉर द SN1 रिएक्शन। एक डबल स्टेप प्रोसेस, यूनिमॉलिक्यूलरिटी का रिएक्शन और रेसमाइजेशन इन द प्रोसेस होता है। अब इससे फायदा क्या, इस पढ़ाने से हमें क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, तो हम बात करते हैं इससे। आपको ये रिएक्शन लिख के दे दिया CH3Cl plus KOH, राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर दैट। इफ द प्रोडक्ट इज अ रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर होगा तो क्या कौन सा मैकेनिज्म जाएंगे, SN1, और अगर रेसमिक मिक्सचर नहीं होगा तो SN2 रिएक्शन जाएंगे। SN2 में रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता, उसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो इन SN1 रिएक्शन द प्रोडक्ट इज अ रेसमिक मिक्सचर, इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दैट मीन्स इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल एंड इट इज अ डबल स्टेप प्रोसेस। सो देयर आर 2 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस, सो दैट इज कॉल्ड द डबल स्टेप प्रोसेस। अब अगर हम बात करें रेट इन SN1 रिएक्शन, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द इंटरमीडिएट। क्या है इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन। एंड ऑलवेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड हियर द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि विच वन हैव द ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन, और वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ SN1। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट कार्बोकैटायंस। ये है पहला कार्बोकैटायन, दैट इज द CH3 पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड द मेथाइल कार्बोकैटायन। मेथाइल क्लोराइड से बनेगा, इसलिए मेथाइल कार्बोकैटायन बोला जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द HCCH3 एंड H पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। जितने बीटा कार्बन्स होंगे दैट विल बी द डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। इसके साथ एक भी नहीं था, ये 0 डिग्री का था यानी मिथाइल था। इसके साथ देखिए एक बीटा कार्बन है, ये है अल्फा कार्बन जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, और इसके साथ एक बीटा कार्बन है, इस वजह से ये बोला जाएगा प्राइमरी। अब अगला देखते हैं, दिस इज द CH3H एंड पॉजिटिव। अब ये देखिए, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा फर्स्ट, बीटा सेकेंड। ये क्या हो गया, 2 डिग्री कंपाउंड। बीटा हटा देते हैं, ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और ये है टर्शियरी कार्बोकैटायन CH3 एंड CH3 पॉजिटिव। और आपको कंपेयर करना है कि विच ऑफ द कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट हेलो एल्केन्स। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो श्योरली प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और आपने पढ़ा हुआ है लोअर द चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो हम देख रहे हैं कि कहां पे सबसे कम चार्ज होगा वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और उस स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम बताएंगे कि विच वन इज मोर स्टेबल एंड विच वन विल अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। अब यहां पे देखते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। हाइड्रोजन्स ना ही डोनर होते हैं ना ही एक्सेप्टर होते हैं। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के बाद होता है, ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी में होता है ना लेने की कैपेबिलिटी में होता है। स्पेशली कार्बन के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी मैच भी करती है, सो देयर्स नो इफेक्ट। लेकिन इसके केस में देखें, इसके केस में एक एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट जनरेटर माना जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर माना जाता है। अब ये एक डोनेशन कर रहा है, एक प्लस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है, और अभी अभी मैंने कहा कि प्लस आई इफेक्ट इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां पे इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो गई, मिथाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा हो गई। सो मिथाइल हैव द लोअर स्टेबिलिटी देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब आते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन में। जब आप सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो ये देखिए, ये है पॉजिटिव चार्ज जिसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये 2 एल्किल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं।
यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से मिथाइल ग्रुप से ज्यादा स्टेबल था, यहाँ पे दो दो प्लस आई इफेक्ट हो गए, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे एक, दो और तीन होने से और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस वन इज द लीस्ट स्टेबल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। दिस इज द स्टेबिलिटी एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे फास्ट कौन जाएगा, टर्शियरी। इससे स्लो कौन जाएगा, सेकेंडरी। इससे स्लो कौन जाएगा, प्राइमरी। इससे स्लो मिथाइल। क्या इससे स्लो भी कोई जाएगा, इससे स्लो भी जाता है, एंड दैट इज द एराइल एरोमेटिक सिस्टम्स। क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और साथ में बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्लास 11th में आपने बेंजीन रिंग का जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो यूं दिखाया गया होगा कि बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजीन रिंग के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि खुद में निगेटिवली चार्ज है, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी निगेटिवली चार्ज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो खुद में निगेटिवली चार्ज हैं, जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे अप्रोच करता है NU नेगेटिव, इन्हें आने नहीं देते। आइडेंटिकल चार्ज रिपल्सन की वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, और कार्बोकैटायन तो अनस्टेबल होता ही है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, एराइल। Then this is the reactivity, rate of reaction in SN1 reaction. लेकिन क्या इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सके, तो इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, और वो है अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो क्या इनसे कम या ज्यादा स्टेबिलिटी के कार्बोकैटायन हैं। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ जाएगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप बढ़ जाएगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो उनसे भी आप स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कुछ ऐसे स्पीशीज की जिनमें एक है वाइनिलिक हैलाइड, तो आपको याद होगा कि वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। दिस इज द वाइनिलिक कार्बोकैटायन, वाइनिलिक हैलाइड से बनने वाला कार्बोकैटायन। ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, एंड दिस बीटा कार्बन इज अनसैचुरेटेड। इफ द बीटा कार्बन इज अनसैचुरेटेड, दैट इज द विनाइलिक सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, ये बॉन्ड यहां से यहां चला गया, तो यहां पे जाने से क्या फर्क पड़ा, यहां से जाने से ये फर्क पड़ा कि बॉन्ड यहां आने पर ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां से जाने की वजह से इस CH2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अगली बार जब ये बॉन्ड यहां से यहां आएगा तो ये बन गया, यानी चार्ज कहां है, एक जगह की जगह पे दो जगह पे आ गया। एक जगह की जगह पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे आ गया। दैट इज कॉल्ड द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड द रिजोनेंस। एंड बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनहेंस। अगर इसी बात को मैं कहूं, मैंने कहा लेसर द चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी। एक चार्ज को दो जगह पे रखेंगे तो एक जगह पे 50% ही आएगा ना, साथ में वो एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है, डीलोकलाइज्ड चार्ज है, तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। सो व्हेन यू विल कंपेयर इट विद दिस वन इज मोर स्टेबल। एक और स्पीशीज देखिए, ये है बेंजाइलिक हैलाइड से बनने वाला कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज। और जब इसको हम मूवमेंट दिखाएंगे तो ये बॉन्ड यहां पे गया तो क्या बन गया, ये बन गया एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। अगली बार यहां पे पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, पैरा पे आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होके जाएगा तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे डबल बॉन्ड। अगली बार ये डबल बॉन्ड जब यहां आया तब क्या हुआ, फिर से इस बार चार्ज आगे चला गया, यहां पे डबल बॉन्ड एंड CH2। अगली बार फिर से ये ओरिजिनल वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए इस प्रोसेस में चार्ज का डिलोकलाइजेशन कहां हुआ, यहां पे चार्ज का डिलोकलाइजेशन दो जगह हो रहा था, और यहां पे 1 2 3 और ये 4 जगह पे, आर्थो पैरा आर्थो। और जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स द बेंजाइल्स आर द
मोस्ट स्टेबल। अब इसके बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बेंजाइल हैलाइड। उनसे कम कौन है, दैट इज द एलाइलिक, सॉरी मैंने यहाँ पे विनाइलिक कई बार बोल दिया, ये एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड। इससे कम टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथाइल एंड लीस्ट विल बी द एराइल। यहाँ पे एराइल और बेंजाइल में कभी कभार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एराइल आर दोज ऑफ द सिस्टम इन विच द हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग, and benzyles are those of the system in which the halogen is attached on the carbon which is directly attached to the benzene ring। वहां पे हेलोजन लगा रहता है जहां पर डायरेक्टली उस कार्बन पे लगा रहता है जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे लगा रहे। अगर वहां पे हेलोजन रहता है तो हम उसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब उसी रिएक्शन के लिए हम दूसरा मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, एंड दिस टाइम द मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे एक प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता था जिसमें कि हेलो एल्केन का भी आयनाइजेशन हो जाता था। यहाँ पे ऐसा सॉल्वेंट ना होने की वजह से आयनाइजेशन उतनी आसानी से नहीं हो पाता। अब यहाँ देखिए, ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि इसका डिसोसिएशन तो होना ही है। ये टूटता है K+ और OH- में, एक्वस मीडियम। अब ये तो टूट गया, लेकिन व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट वन, CH3Cl हेलो एल्केन। ये तो उतना पोलर है नहीं जितना कि KOH है, तो इसका डिसोसिएशन उतनी आसानी से नहीं होने वाला जितना आसानी से KOH का हो जाता है। और अगर इतनी आसानी से नहीं होने वाला तब क्या होगा, अब यहाँ पे बगैर डिसोसिएट हुए ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अप्रोच हो जाता है। और कहां से होता है, बैक अटैक, अप्रोच फ्रॉम द बैक। बैक से क्यों, ज्यादा शर्मिला है क्या कि आगे से अप्रोच नहीं कर सकता? बैक से इसलिए अप्रोच होता है क्योंकि दिस कार्बन इज पार्शियली निगेटिवली चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द आइडेंटिकल चार्ज रिपल्सन एज वेल एज द स्टेरिक हिंडेंस। क्लोरीन बड़ा सा है तो स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा डालेगा। Then due to the negative charge and steric hindrance, the hydroxyl can't approach from the front. The chances of approaching from the front becomes lesser. So the hydroxyl will approach from the back. और अगर ये बैक से अप्रोच करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा, There will be an intermediate। तो ये तो हो गया आपके 3 हाइड्रोजन्स, और ये आपका है हेलोजन, और ये है आपका हाइड्रोक्सिल। अगर यहां पे देखें तो ये 5 वैलेंसी दिखाई पड़ रही है, जबकि कार्बन के पास सिर्फ S और P सबसेल होता है। S सबसेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और P सबसेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यानी टोटल कितना हो गया, 6 + 2 दैट इज द 8। और 8 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ बॉन्ड, एक पेयर एक बॉन्ड बनाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से 4 पेयर बनता है, और 4 पेयर 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 ही मैक्सिमम बॉन्ड कार्बन बना सकता है। यहां पे 5 बॉन्ड बन गए। दिस इज नॉट ए स्टेबल फेज, दिस इज अ ट्रांजिशन फेज। अगर मैं सिंपली इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज अ फेज वेयर द क्लोरीन इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। ये यहां से निकलने वाला है, ये यहां पे जुड़ने वाला है। ना ही ये पूरी तरह से निकला है और ना ही ये पूरी तरह से जुड़ा है। दिस इज द कंडीशन। कुछ ऐसा होता है जैसे हम 2 हाथ से 2 चीजें पकड़ सकते हैं, लेकिन जो जगलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कई सारे बॉटल, कई सारे सामान को लेके लगातार मूवमेंट में रखते हैं, और मूवमेंट में रखने की वजह से सब पकड़ पाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, दैट इज अ ट्रांजिशन फेज। और फाइनली ये क्लोरीन यहां से टूट जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपका CH3NOH। साथ में क्या बचा, ये बचा आपका Cl-, और ये Cl- जब K+ के साथ अप्रोच करेगा तो ये बना लेगा KCl, एंड दिस इज द ओवरऑल स्टेप ऑफ रिएक्शन। नाउ सी, व्हेन यू विल टॉक अबाउट दिस वन, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट। हम कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट सिर्फ उस फेज का, उस समय की कंडीशन है जब ये हाइड्रोक्सिल बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन बॉन्ड तोड़ रहा है। किसी के बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अप्रोच होता है, कितना जल्दी से अप्रोच कर पाता है और कितना टाइम वो रहता है। तो इसके सर्वाइवल का टाइम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, सिर्फ अप्रोच का टाइम मान के चलते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन चलता है विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ बॉन्ड? मैक्सिमम 1 एंगस्ट्रॉम, इससे भी छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा। 10⁻⁻10 मीटर को चलने के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 10⁻18 सेकेंड। जब हम किसी छोटे टाइम की बात करते हैं, कहते हैं ये टाइम बहुत छोटा है, तो हम कहते हैं पलक झपकते ही ये काम हो गया, बहुत छोटे टाइम में हो गया, इसे कहने के लिए हम कहते हैं पलक झपकते ही काम हो गया। लेकिन पलक को झपकने में भी 0.1 सेकेंड तो लग ही जाता होगा, यहां पे तो उससे भी बहुत कम लगा हुआ है टाइम, 10⁻18। आप समझ सकते हैं कितनी छोटी वैल्यू है। सो दिस स्पीसीज इज फॉर्म्ड और नॉट, वी डोंट हैव एनी ऑफ द प्रूफ। और ऐसा होने की वजह से, इसके फॉर्मेशन का कोई प्रूफ ना होने की वजह से, इस रिएक्शन को हम एक सिंगल स्टेप रिएक्शन मानते हैं और इंटरमीडिएट इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होते हुए ये बना होगा। सिर्फ इसके रूट को डिटरमाइन करने के लिए इस इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं, अदरवाइज इस इंटरमीडिएट के बनने का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी से इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सेकंड वन, द मॉलिक्युलरिटी। अब क्योंकि एक ही स्टेप का रिएक्शन है तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही मॉलिक्युलरिटी में आएंगे। कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? द फर्स्ट वन दैट इज द CH3Cl क्लोरोमेथेन, एंड सेकंड वन इज द हाइड्रोक्सिल आयन। तो दो पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं और इस वजह से इसे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन। नाउ द थर्ड वन, it is a single step process, this is the bimolecular process, and the next one that is the position। लास्ट टाइम मैंने कहा था SN1 में आपको कहा था they gives the racemic mixture। व्हाट्स अबाउट दिस वन? यहां पे देखिए ये क्लोरीन है ऑन माय राइट हैंड साइड और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड। तो इन कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन इज देयर, और इस वजह से हम कहेंगे प्रोडक्ट को इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलता है। एंड दिस इज द स्पेसिफिसिटी फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रिएक्शन। अब SN1 की तरह हम यहाँ पे SN2 में भी रेट ऑफ रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2। In the previous reaction, that is SN1 reaction, I have said that the rate of reaction is determined on the basis of stability of intermediate। Clearly मैंने कहा कि किसी भी रेट का रिएक्शन उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट ऑफ SN2 रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा द SN2 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इतना अनस्टेबल होता है कि उसके सर्वाइवल का ही हमें मालूम नहीं है। और जब मैंने टाइम कैलकुलेट करके एक बताया, एक प्रोबेबल टाइम कैलकुलेट करके बताया, तो मैंने कहा कि सर्वाइवल टाइम है ऑलमोस्ट 10⁻⁻18 सेकेंड। अब मान लेते हैं किसी फैक्टर की वजह से 1000, 2000, 10,000, 20,000 गुना ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो 10,000 गुना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो भी स्टेबिलिटी टाइम क्या होगी? 10⁻⁻14 सेकेंड। अभी भी इतना छोटा सेकेंड है कि इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द SN2 रिएक्शन or the rate of reaction in SN2, we are not going to discuss about the stability of intermediate. We are just going to discuss about the chances of approach, whether the chance of approach is greater or lower in this process. अगर chance of approach ज़्यादा है, that means the rate of reaction will be greater. लेकिन अगर chance of approach कम है, तो rate of reaction कम होगा। और इसको हम किस बेसिस पे देख रहे हैं? We are going to see it on the basis of the steric hindrance। अब यहां देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्पीसीज दैट इज कॉल्ड द मिथाइल ग्रुप। ये क्लोरीन है जो कि एक बल्की ग्रुप है। लेकिन जब आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन रिएक्टिव स्पीसीज में सबसे छोटा आइटम है। हाइड्रोजन से छोटा कोई स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और अगर सबसे छोटा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें, ये यहाँ से अप्रोच कर सकता है, यहाँ से अप्रोच कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, इवन यहाँ पर भी थोड़े बहुत जगह है, तो चांसेज ऑफ अप्रोच बहुत सारे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से। लेकिन अगर यही हम प्राइमरी के केस में देखें तो यहाँ पे देखिए एक मेथिल ग्रुप है, श्योरली हाइड्रोजन से तो बड़ा ही होगा। एक क्लोरो ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है,
ये भी बल्कि है, 2 हाइड्रोजन्स हैं। अभी भी आप कह सकते हैं सफिशिएंट स्पेस तो है, लेकिन अगर पहले के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे 3-3 छोटे ग्रुप्स थे, 3-3 हाइड्रोजन थे, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अप्रोच की चांसेस कम होने लगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा बढ़ने लगा। सो यू कैन से दैट द मिथाइल सिस्टम हैव द ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन देन द प्राइमरी। व्हाई? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ सी द सेकंड, नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकेंडरी सिस्टम। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है। और यहां पर अगर आप देखें, ये है आपका क्लोरीन, ये है आपका मिथाइल, ये फिर से आपका है मिथाइल, और ये है आपका हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का साइज फिर से वैसा ही पहले की तरह छोटा ही है, लेकिन बचे हुए जो 3 ग्रुप्स हैं उनका साइज रिस्पेक्टिवली बड़ा हो गया। और बड़ा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई? यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस इन पोजीशंस पे बढ़ गया, सिर्फ इस पोजीशन पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है। यानी पहले 2 कंडीशंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गया। और स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। तो मिथाइल से प्राइमरी और प्राइमरी से सेकेंडरी हेलो एल्केन्स का रेट ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ SN2 कम हो गया, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने की वजह से। अब यहां देखिए, एक क्लोरीन है बल्कि ग्रुप, मिथाइल, अगेन मिथाइल, अगेन मिथाइल, देख सकते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2, दिस इज रेट in SN2 is maximum in methyl, then primary, then secondary, then tertiary. Surely least will be in the case of the aryl. Aryl से कम किसी में नहीं होता। तो अब यहाँ पे अगर लिख देते हैं मैं aryl, this is the rate of reaction in the case of the haloalkanes, especially in the case of the SN2 reaction. और यहाँ पे हमने किसके बेसिस पे देखा? हमने देखा on the basis of the steric hindrance. हम एक और चीज देखने जा रहे हैं, क्या सिर्फ एल्केन, कार्बोकैटायन, कार्बन, स्टीयरिक हिंड्रेंस यही फैक्टर हैं, या हैलोजन भी कोई फैक्टर जनरेट करता है? क्या हैलोजन के बदली होने से भी रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करता है? श्योरली हैलोजन के वेरी करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करेगा। और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अलग अलग हैलोजन्स के अलग अलग एटॉमिक रेडियस होते हैं। एटॉमिक रेडियस के साथ साइज ऑफ बॉन्ड वेरी करता है। आपको मालूम है फॉर अ सिंगल बॉन्ड सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लगते हैं, चाहे वो क्लोरीन के केस में बने, फ्लोरीन के केस में बने, ब्रोमीन के केस में बने, या फिर आयोडीन के केस में बने। बॉन्ड जितना लंबा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, उनकी डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, और एज ए रिजल्ट यू कैन सी द बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बिकम वीकर। तो बॉन्ड जितना बड़ा होगा, बॉन्ड उतना कमजोर होता जाएगा और चांसेस ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएंगे। सो इफ द एल्किल ग्रुप्स आर सेम, तो क्या होगा? द फास्टेस्ट रिएक्शन विल बी इन द केस ऑफ आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ड्यू टू बॉन्ड क्लीवेज प्रॉपर्टी। यहां पे दिस इज द रेट इन SN1 एंड SN2 बोथ। SN1 के केस में भी है और SN2 के केस में भी यही रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले टॉपिक को हम अगले दिन देखेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।